بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ختم ہو چکی تھی۔ صبح کی سفیدی چاروں طرف پھیل رہی تھی جب گاڑی ایک تنگ سی گلی کے شروع ہی میں رک گئی۔ ایک چادر میں خود کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے چھپا لیا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ارد گرد دیکھے بغیر تیز قدم اٹھاتی میں گلی میں داخل ہوئی۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی۔ اماں بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ گھر کی طرف تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں اماں کے بارے میں خیال آیا۔ گلی کی نکڑ میں بنے ہوئے چھوٹے سے مکان کا چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جلدی سے دروازے سے اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ گلی میں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے لوگ گھر سے باہر ہر ضرورت کے تحت ہی نکلتے تھے۔ آج تو فنکشن ختم کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ نہ جانے اماں کا کیا حال ہوگا۔ نرگس آج بہت دیر کر دی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کیا کرو، میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ ماں کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو مجھے دیکھتے ہی اماں نے بے صبری سے کہا، ہاں میں تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ جلدی گھر آ جایا کروں، لیکن آپ تو جانتی ہیں نا کہ میری میڈم بہت سخت ہیں، ذرا سی غلطی اور کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتی۔ ہماری وجہ سے اگر کوئی گاہک ناراض ہو جائے تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، اس لیے خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چادر اتار کر اچھی طرح سے تہہ لگا کر الماری میں رکھتے ہوئے میں نے کہا، اور اماں کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ یہ دونوں بھی ساری رات جاگتی رہی ہیں، صبح نماز پڑھنے کے بعد سوئی ہیں، لیکن میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب تم گھر نہ ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ زارا اور فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے اماں نے کہا، میں بھی اب آرام کرنا چاہتی ہوں، بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہے، انہیں بھی سونے دیں، کون سا ان دونوں نے اسکول جانا ہے۔ تکیہ پر سر رکھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے میں نے کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ یہ دونوں بھی سو جائیں اور نیند پوری کر لیں۔ اماں نے لیٹتے ہوئے کہا، آپ نے نماز کے بعد کچھ کھایا ہے یا نہیں؟ اگر کچھ نہیں کھایا تو میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لے آتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی شوگر لو ہو جائے۔ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ، میں نے دودھ کے ساتھ ابلا ہوا انڈا کھا لیا ہے، اب مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ جب تم تینوں بہنیں سو کر اٹھو گی اور ناشتہ کرو گی تو تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ اماں نے پیار بھرے انداز سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں کے ہاتھوں کے لمس میں بہت سکون تھا۔ میں اس وقت بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن اماں کے ہاتھ کے پیار بھرے لمس نے میری ساری تھکاوٹ دور کر دی تھی، اور میں اس وقت سکون محسوس کرتے ہوئے گہری نیند میں جا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو فاریہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ میں ابھی آپ کو جگانے والی تھی، اچھا ہوا آپ خود ہی جاگ گئیں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آ جائیں، زہرا مزیدار گرما گرم پراٹھے بنا رہی ہے۔ فاریہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی اور یہ خوشبو بھوک بڑھا رہی تھی، اس لیے جلدی سے بستر سے نیچے اتری، چپل پاؤں میں پہن کر کھڑی ہوئی تو تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی اور میں دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ نگاہیں جھکا کر پاؤں کی طرف دیکھا تو سوجن کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے، پاؤں اتنے زیادہ سوج چکے تھے کہ چپل میں نہ جا رہے تھے۔ ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھی اور کمرے کے ساتھ ملحق باتھ روم میں چلی گئی۔ ایک بالٹی میں گرم پانی رکھا ہوا تھا، گرم پانی کے ساتھ اچھی طرح پاؤں کو دھویا تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اماں اور فاریہ نے ناشتہ شروع کر دیا تھا، زہرا بھی ناشتہ بنانے کے بعد آ گئی تھی۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ایک بالٹی میں گرم پانی اور نمک ڈال کر لے آؤ، میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور سوج بھی چکے ہیں۔ گرم پانی میں پاؤں رکھ کر بیٹھنے سے نہ صرف تکلیف ختم ہو جاتی ہے بلکہ سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فاریہ ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی جب میں نے اس سے کہا، ابھی لے کر آتی ہوں۔ بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، باہر صحن میں آ جاؤ، دھوپ میں بیٹھ کر پاؤں کی اچھی طرح سے مالش کرو۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اماں نے کہا۔ دھوپ میں بیٹھ کر گرم پانی میں پاؤں رکھے تو بہت سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ کا فون آیا ہے۔ میں اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جب زارا نے فون میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
स्क्रीन पर मैडम का नंबर जगमगा रहा था। सलाम दुआ के बाद मैडम ने रात को फंक्शन पर जाने के लिए तैयार होने का कहा और फोन बंद कर दिया। आज रात फिर जाना पड़ेगा। फोन बंद किया तो अम्मा ने पूछा, आज जल्दी जाना होगा, दूर के किसी गांव में फंक्शन है। मैंने जवाब दिया, आज तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इनकार कर दो। अम्मा ने मुझे मना करते हुए कहा। इनकार करने का मतलब है मैडम को गुस्सा दिलवाना। वो गुस्से में आकर मुझे हमेशा के लिए फारिग भी कर सकती हैं। पहले ही बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। अब परेशान ना हो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं। मैंने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा। ये बात तो सच थी कि आज मैं बहुत थकी हुई थी। रात शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी। फंक्शन बहुत देर से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से सारी रात नाचते ही गुजर गई। ये तो भला हो सूरज का, जो अपने मुकर्ररा वक्त पर निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, और मौज़्ज़िन की आवाज़ सुनकर बिजनेसमैन ने फंक्शन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तेज मौसीकी पर नाच नाच कर मेरे पांव थक गए थे और मैं दुआ कर रही थी कि ये फंक्शन ख़त्म हो और मैं घर जाकर आराम करूं। ना जाने अल्लाह ताला ने हमें इस तवाइफ कबीले में क्यों पैदा किया था। बेबसी से कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए मैंने सोचा, अम्मा भी अपने इस खानदानी पेशे से नफरत करती थी। उनके गले में सुर था। लोग दूर दूर से उनकी खूबसूरत आवाज़ सुनने के लिए आते थे। ऐन आलम शबाब में अम्मा को एक अमीर ज़ादे से इश्क हो गया था। उसके इश्क में मुब्तला होकर अम्मा ने यह घर छोड़ दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उस शख्स का दिल भर गया तो उसने हमेशा के लिए अम्मा को छोड़ दिया। इतने अरसे में अम्मा 3 बेटियों की मां बन चुकी थी। कुछ अरसा तक तो हमें पालने की कोशिश करती रही, लेकिन ये दुनिया एक तवाइफ को मेहनत कश के रूप में नहीं देख सकती। लोगों के तंग करने की वजह से ना चाहते हुए भी अम्मा को इस बदनाम ज़माना मोहल्ले में वापस आना पड़ा। मेरी नानी उनसे सख्त नाराज थी। अम्मा के जाने के बाद उनका चबूतरा वीरान हो गया था। अम्मा की मिन्नत समाजत पर उन्हें ये टूटा फूटा मकान बहुत एहसान करके दिया गया था। अम्मा ने दोबारा से गाना शुरू कर दिया था। अचानक ही एक दिन अम्मा को फालिज हो गया। इलाज के बाद उनकी आवाज में वो दमखम न रहा तो घर में फाकों तक की नौबत आ गई थी। अम्मा के बाद गाने की महफिल सजाना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मेरे गले में तो सुर उठता ही न था। जब तक नानी जिंदा रहीं, थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। उनके मरने के बाद कोई भी न था जो हमारी मदद करता। बहुत मुश्किल से एक दोस्त की मदद से मैडम के ग्रुप में नौकरी मिली थी। शादी के फंक्शन पर नाचने का काम कोई आसान न था, लेकिन मैं शुक्र अदा करती थी क्योंकि घर में अक्सर फाके ही रहते थे। कुर्सी से टेक लगाए, आंखें बंद किए, मैं अपने दुख भरे माजी के बारे में सोच रही थी जब फोन की बेल मुझे खींच कर हाल में ले आई। अब भी मैडम ही की कॉल थी। सरे शाम तैयार हो जाने का हुक्म देकर कॉल काटती थी। सुर्ख रंग की फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहनकर, मेकअप और ज्वेलरी से खुद को सजाकर मैं मैडम का इंतजार कर रही थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी तो एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपाने के बाद अम्मा के गले से लगकर उन्हें खुदा हाफिज कहा और घर की दहलीज से बाहर आ गई। गाड़ी में मेरे अलावा सजी संवरी 3 लड़कियां और भी थी। मैडम ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। पिछली गाड़ी में गार्ड भी मौजूद थे। गाड़ी जब शहर की हुदूद से बाहर निकली तो शाम का अंधेरा फैलने लगा था। 1 घंटे के सफर के बाद हम एक कस्बे में दाखिल हुए। एक बड़ी सी हवेली जो कि रोशनियों में डूबी हुई थी। उसके गेट के सामने गाड़ी रुकी तो कुछ देर बाद 2-3 आदमी हमारे इस्तकबाल के लिए आ गए। ये आदमी ना सिर्फ बिजनेसमैन बल्कि शहर की सियासत में भी आला मुकाम रखते थे। हवेली के अंदर रंग बरंगी लिबास पहनी औरतें और बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। ऊंची आवाज में गाने बज रहे थे। हमें मर्दान खाने के एक पुरसुकून कमरे में आराम करने के लिए कहा गया। सफर काफी लंबा था, इसलिए थकावट हो रही थी। बेहतरीन किस्म के खाने से हमारी तवाज़ु की गई। गांव में लोग रात देर तक जागने के आदी नहीं होते, इसलिए जल्द ही फंक्शन शुरू हो गया। तेज म्यूजिक पर थरकते हुए जिस्मों पर पैसों की बारिश होने लगी जब अचानक ही ना जाने कहां से फायरिंग की धमाकेदार आवाज सुनाई दी।
تھوڑی دیر پہلے جہاں میوزک کی آواز گونج رہی تھی، اب وہاں عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے ہر کوئی ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ لوگ چیختے ہوئے حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جاؤں۔ جلد سے جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچنا ضروری تھا، ورنہ کسی بھی اندھی گولی کا شکار بننا مشکل نہ تھا۔ ایک سمت تیز تیز قدموں سے میں بڑھنے لگی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ فائرنگ کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ حملہ آوروں نے حویلی کے پچھلے گیٹ کی طرف سے حملہ کیا تھا، اور اب حویلی کے محافظ بھی جوابی کارروائی کر رہے تھے۔ ایک گھر کے باہر کی لائٹ جل رہی تھی۔ تیزی سے اس گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ لمبے لمبے سانس لے کر اپنے بے ترتیب ہو جانے والے سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب حالت کچھ سنبھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ کسی کا گھر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ مسجد کے کمرے کا ایک دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور اس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر میں اس آدھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت یہ جگہ مجھے سب سے زیادہ محفوظ لگ رہی تھی۔ دروازے کو اچھی طرح بند کر کے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک نوجوان زمین پر بستر بچھائے بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی تھی۔ شاید اس وقت کمرے کی لائٹ جلنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ شخص کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان میری طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ خوف اور سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ نوجوان نے انتہائی نرم لہجے سے پوچھا۔ میں یہاں شادی پر آئی تھی، لیکن کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ کپکپاتے ہوئے جسم کے ساتھ میں نے اس سے کہا، یہ گرم چادر اوڑھ کر تم آرام سے بیٹھ جاؤ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک سفید رنگ کی موٹی سی چادر میری طرف بڑھاتے ہوئے اس شخص نے کہا۔ ڈرتے ہوئے آگے بڑھ کر میں نے چادر پکڑی تو زمین پر کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ چادر میں خود کو لپیٹتے ہوئے میں نے نگاہیں جھکا کر زمین کی طرف دیکھا کہ شاید نیچے گرنے والی چیز دکھائی دے۔ وہ نوجوان بھی زمین پر ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ نہ ملنے پر آرام سے بیٹھ گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑا سا اور موٹا میٹ بچھا ہوا تھا۔ میں اس پر بیٹھ گئی۔ نوجوان دوبارہ کتاب پڑھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس نوجوان کے چہرے پر داڑھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نوجوان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی اور وہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ میری نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھوں کا رخ پھیر لیا۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی طرف بہت غور سے دیکھ رہی ہوں، اس لیے وہ رخ پھیر کر بیٹھ گیا اور کتاب پڑھنے لگا۔ کمرہ بہت گرم تھا۔ باہر کی سردی کی نسبت یہ کمرہ کافی گرم تھا۔ اس کمرے میں نہ تو کوئی ہی ہیٹر چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی انگیٹھی تھی، لیکن پھر بھی کمرہ انتہائی گرم تھا۔ سردی سے کپ کپاتے ہوئے بدن کو سکون ملا تو نیند آنے لگی، لیکن میں سونا نہ چاہتی تھی۔ ابھی تک فائرنگ کی آواز اور چیخو پکار کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں حالات بہتر ہونے کی دعا کرنے لگی۔ گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ بہت خوشیاں منا رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ آپ شادی پر موجود نہیں تھے؟ کیا چودھری صاحب نے آپ کو شادی پر نہیں بلایا تھا؟ اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا، نہیں، میں ایسے ہنگاموں سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ میری طرف دیکھے بغیر ہی اس نے جواب دیا، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام زوران ہے اور اس مسجد میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں اس گاؤں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کتاب بند کر کے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے میری طرف مڑ کر اس نے جواب دیا، زوران، آپ کے گاؤں میں کوئی مسجد نہ تھی جو آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آنا پڑا؟ میں نے انتہائی معصومیت سے پوچھا، ایسی بات نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں بھی مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں امام مسجد کے فرائض دینے کا حکم ہوا تھا، اس لیے میں یہاں پر آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
मैं अब भी उसकी तरफ बहुत गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी कशिश थी जो मुझे निगाहें हटाने न देती थी। उसे भी महसूस हो चुका था कि मैं बहुत महवियत से उसको देख रही हूं। आपका ताल्लुक कहां से है और आप चौधरी साहब की क्या लगती हैं? जोरान ने मुझसे सवाल किया। उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन मैंने उसे झूठ बोलने की बजाय सच बता दिया। मेरा चौधरी साहब से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं उनकी कोई रिश्तेदार हूं। चौधरी साहब ने अपने बेटे की शादी की खुशी में शहर से नाचने वाली लड़कियों को बुलाया था। मैं भी उन्हीं लड़कियों में शामिल हूं और मेरा नाम नरगिस है। निगाहें झुकाकर मैंने उसे जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर वो हैरान नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? उसने बहुत चुपते हुए अंदाज में मुझसे पूछा। ये आपसे किसने कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं? नाचना मेरा पेशा है और मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से है जहां पर नाच गाना ही उनका जरिया मुआश होता है। तेज लहजे से मैंने उसे जवाब दिया। उसका अंदाज और बात दोनों ही मुझे पसंद ना आए थे। आपको बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि ये कोई अच्छा और शरीफ खानदान की लड़कियों का काम नहीं है। माजरत ख्वाहाना अंदाज में उसने कहा। आपको बताना जरूरी समझती हूं कि मैं खुद भी इस पेशे को अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन भूख और मां की बीमारी मुझे इस रास्ते पर ले आई है। मैं शौक से यह काम नहीं करती। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अल्लाह ताला ने इंसान से रिज्क का वादा किया है। अगर कोई इंसान भूख के डर से कोई गलत रास्ता इख्तियार करता है तो उसका ईमान कमजोर होता है। अल्लाह ताला पर उसका ईमान नहीं होता। मेरी तरफ देखे बगैर उसने कहा और किताब हाथ में पकड़ ली। उसकी बात ही ऐसी थी कि मेरे पास कोई जवाब न था। जवाब देने की बजाय मैंने निगाहें झुका ली और वो दोबारा किताब का मुताला करने में मसरूफ हो गया। अचानक ही मस्जिद के सहन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। बातें करते हुए लोग हमारी तरफ आ रहे थे। मैडम की आवाज को मैंने पहचान लिया था। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एक नौजवान लड़के के साथ मुझे देखकर मैडम न जाने क्या समझती और उसकी मुझे क्या सजा दी जाती। आने वाले हालात के बारे में सोचते हुए मैंने फिक्रमंदी से आंखें बंद कर ली। अचानक ही मस्जिद का दरवाजा खुला और दो आदमियों के साथ मैडम अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे मैडम के दो गार्ड्स भी थे। नरगिस, तुम कैसी हो? हम कब से तुम्हें तलाश कर रहे हैं। आगे बढ़कर मैडम ने मुझसे जल्दी से पूछा। वो बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे कोई चोट नहीं आई। बाकी सब कैसी हैं? अपनी जगह पर खड़े होते हुए मैंने जल्दी से पूछा। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब खैर आफियत से हैं। बाकी तीनों लड़कियां भागकर साथ वाले घर में चली गई थीं। उस वजह से उनकी जान भी बच गई। मैं भी एक कमरे में छुप गई थी। मैडम ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मुझे बताया। निगाहें उठाकर मैंने उस बिस्तर की तरफ देखा जहां पर वो नौजवान बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वहां पर अब कुछ भी न था। ना ही बिस्तर, ना ही वो शख्स। मैं आंखें मल मल कर पूरे कमरे में देखने लगी, लेकिन मेरे सिवा कमरे में और कोई भी न था। अच्छा हुआ तुम जान बचाकर यहां आ गई। इस आदमी ने तुम्हें मस्जिद के गेट से अंदर होते देख लिया था। इसी के कहने पर हम यहां आए हैं और अल्लाह का शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। मैडम ने एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जोरान अचानक से कहां गायब हो गया है। अचानक जल्दी से यहां से चलो, हम वापस जा रहे हैं। चौधरी साहब की कोई पुरानी दुश्मनी थी जिसका बदला लेने के लिए उनके दुश्मनों ने आज के दिन का इंतखाब किया था। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान अभी तक सामने नहीं आया। अब हमें यहां से जल्द अज जल्द वापस चले जाना चाहिए। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चलते हुए मैडम ने कहा। मैं अभी तक मस्जिद के उस छोटे से कमरे में चारों तरफ हैरत से देख रही थी कि वो कहां चला गया है। अचानक ही मेरा पांव किसी छोटी सी चीज से टकराया और टर्न की आवाज आई। मैडम से हाथ छुड़ाकर मैंने नीचे फर्श की तरफ देखा तो एक मर्दाना अंगूठी दिखाई दी। जल्दी से वो अंगूठी उठाकर मैंने अपने हाथ में छुपा ली। ये अंगूठी
जब जोरान ने मुझे चादर दी थी तब फर्श पर गिर गई थी, लेकिन उस वक्त दिखाई न दी थी। आगे कदम बढ़ाते हुए भी मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। गांव का वो आदमी जिसने मुझे मस्जिद की तरफ आते हुए देखा था और गार्ड हमसे आगे चल रहे थे, मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकली तो आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो हैरत का शदीद झटका लगा। खौफ से मेरा सारा जिस्म थर थर कांपने लगा। जोरान की दी हुई गर्म चादर मेरे इर्द गिर्द लिपटी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरा जिस्म कपकपाने लगा था। जिस्म का यह कांपना खौफ की वजह से था, क्योंकि चंद लम्हे पहले जिस जगह को मैं घूर घूर कर देख रही थी और वो खाली थी, जोरान अचानक ही ना जाने अपने बिस्तर समेत कहाँ गायब हो गया था। अब वो दोबारा उसी जगह पर मौजूद था और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। हाथ हिलाकर मुझे रुखसत कर रहा था। एक लम्हे के लिए तो मेरा पूरा जिस्म साकत हो गया। ये सब क्या हो रहा है, मैंने खुद से कहा। मस्जिद के अंदर सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम परेशान मत हो। चादर को अच्छी तरह अपने इर्द गिर्द लपेट लो। गाड़ी में हीटर ऑन हो जाएगा तो सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। मेरे जिस्म की कपकपाहट महसूस करते हुए मैडम ने कहा। वो समझ रही थी कि शायद मैं सर्दी की वजह से कपकपा रही हूं, लेकिन ऐसा ना था। मैं तो खौफ और हैरत की वजह से कांप रही थी। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। वापसी के सफर पर हम सब बहुत खामोश और सहमी हुई थी। मैं पिछले 1 साल से मैडम के साथ काम कर रही थी, लेकिन आज तक कोई ऐसा वाकया रोनुमा ना हुआ था। मैडम हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखती थी। लड़ाई झगड़े वाले मामलात से मैडम अक्सर दूर ही रहने की कोशिश करती थी। मैं अपने घर में अपनी माँ और बहनों के साथ रहती थी, जबकि मेरे साथ जाने वाली 3 लड़कियां मैडम के साथ ही रहती थी। अभी रात का अंधेरा बहुत गहरा था जब गाड़ी हमारी गली के नुक्कड़ पर आकर खड़ी हुई। गली बहुत तंग थी, गाड़ी का अंदर दाखिल होना मुमकिन न था, लेकिन हमारी गली में हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। ये एक ऐसा बाजार था जहां दिन सोते और रातें जागती थीं। गाड़ी से उतरकर मैं तेज कदम उठाती अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त मेरी वापसी नहीं होती थी, इसलिए दरवाजा बंद था। मैंने मैडम से कह दिया था कि फोन करके मेरे घर बता दें कि दरवाजा खोल देंगे, लेकिन अभी तक दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद फारिया दरवाजा खोलने के लिए आई। आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गईं? सब खैरियत है ना? आप परेशान लग रही हैं। फारिया ने दरवाजे पर ही पूछना शुरू कर दिया था। सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम सब कुछ दरवाजे पर ही पूछ लोगी। उसे तसल्ली देते हुए मैंने दरवाजा बंद किया। कमरे में दाखिल हुई तो अम्मा और ज़हरा भी जाग रही थी। आज तुम बहुत जल्द वापस आ गई हो, कोई मसला तो नहीं हुआ? अम्मा ने बेसब्री से पूछा। कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्यों जल्दी आ गई हूँ। मैंने माँ के परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुरा कर कहा, ताकि वो मजीद परेशान ना हो। दूसरे कमरे में आकर गरम मर्दाना चादर जो कि जोरान ने दी थी उसे तह लगाकर संभाल कर रखा। मेरे हाथ की अंगूठी में मस्जिद के फर्श से मिलने वाली मर्दाना अंगूठी भी मौजूद थी। अंगूठी मेरी उंगली पर बहुत खुली थी, लेकिन मैंने उसे पहना हुआ था। एहतियात से उसे भी संभाल दिया। कपड़े बदल कर आई तो अम्मा, फारिया और ज़हरा अभी तक मेरे इंतजार में जाग रही थी। आधी रात हो रही थी और आप तीनों अभी तक जाग रही हैं। अम्मा के साथ बिस्तर में घुसते हुए मैंने कहा, हम इसलिए जाग रही हैं कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला हुआ है। मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए अम्मा ने परेशानी से पूछा। आज हम एक गांव में शादी के फंक्शन पर गई थी। जिन चौधरी साहब के बेटे की शादी थी, उनके अपने गांव में कोई दुश्मनी चल रही थी। उनके दुश्मनों ने अचानक ही हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब तो महफूज रहे। अब ये तो रब ही जानता है कि उस गांव के लोग या चौधरी साहब के मुलाजमीन में से कितने लोग उस दुश्मनी की वजह से जान से हाथ धो बैठे होंगे। दुख भरे लहजे में मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सब खैर व आफियत से हो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिल बहुत बेचैन था। अम्मा ने मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा। मैंने मुख्तसर अल्फाज में सारा वाकया बयान किया कि कैसे मैंने अपनी जान बचाई और मस्जिद में जाकर पनाह ली, लेकिन जानबूझकर जोरान का जिक्र न किया। मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कम है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
अम्मा बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। फारिया और ज़ारा भी हमले का सुनकर परेशान हो गई थी, लेकिन अब वो भी मुतमईन थी और सोने लगी थी। 1 घंटे का सफ़र करके मैं वापस लौटी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस ना हो रही थी और ना ही नींद आ रही थी। मेरी निगाहों के सामने बार बार ज़ौरान का खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगता था, लेकिन फिर अचानक ही खौफज़दा होकर अपनी आंखें बंद कर लेती। ये कैसे मुमकिन था कि वो एकदम से गायब हो गया और फिर वापस भी आ गया? मस्जिद में आने वाले और किसी शख्स को भी वो दिखाई न दिया। हत्ता कि मैडम तो बहुत चालाक और जहादीदा औरत है, उन्हें भी वो दिखाई नहीं दिया था। मेरा जहन मुझे इसके बारे में कुछ और बता रहा था, लेकिन दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। एकदम से गायब हो जाना और फिर दोबारा नजर आना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ये खूबी तो जिन्नात में पाई जाती है। मैं उसी के मुतल्लिक सोचते सोचते न जाने किस वक्त सो गई। फजर की नमाज अदा करने के लिए अम्मा ने जगाया तो नींद से बेहाल हो रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं ना उठी तो अम्मा से बहुत डांट पड़ेगी। नमाज पढ़ने के बाद मैं दोबारा सोने के लिए लेट गई। मेरे जहन में वो मंजर बार बार चल रहा था जब ज़ौरान अचानक से गायब हो गया और फिर अचानक ही दिखाई देने लगा। नाश्ते से फारिग होकर फारिया और ज़ारा घर के कामों में मसरूफ़ हुई तो मैं भी दूसरे कमरे में आ गई। अम्मा सहन में धूप में आराम कर रही थी। दूसरे कमरे में जाकर मैं उस अंगूठी को गौर से देखने लगी जो मुझे मस्जिद से मिली थी। अंगूठी एक आम सी मर्दाना अंगूठी जैसी थी। एक खूबसूरत नीले रंग का मोती लगा हुआ था। ये मोती भी आम मोतियों की तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह थी कि अगर इसको गौर से देखा जाए तो अंगूठी के अंदर अजीब से मंजर दिखाई देने लगते थे। मुझे उस अंगूठी के बाद यकीन हो चुका था कि वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि जिन था। मैं अपने दिल के हाथों बहुत मजबूर हो चुकी थी। ये चाहती थी कि मैं उससे मिलूं, बातें करूं, उसे दोबारा देखूं, लेकिन ऐसा मुमकिन न था। मैं पहली बार उसे एक ऐसे गांव में मिली थी जहां मैं दोबारा नहीं जा सकती थी। आज मैडम की कॉल आई तो बहुत परेशान थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ता तक मजीद किसी फंक्शन का ऑर्डर नहीं लेगी, क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी हैं। इसलिए यह हफ्ता घर पर ही गुजारना था। सुबह से शाम तक घर के छोटे मोटे कामों में मैं फारिया और ज़ाहरा की मदद करवाती रहती। मेरे जहन में बार बार इमाम मस्जिद जिनजादा का ख्याल आता था। वो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचता होगा। उसने तो तवाज़े और साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि रिज्क के पीछे भागने वाले का अल्लाह पर ईमान नहीं होता। रात का खाना खाने के बाद दरवाजे बंद करके हम सोने की तैयारी कर रहे थे। जब फारिया पानी पीने के लिए उठी तो उसके हाथ से पानी का जग छूट गया और उसके सारे कपड़े गीले हो गए। सर्दी में कपड़े खुश्क होना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो कपड़े तब्दील करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई और अचानक ही चीखें मारते हुए वापस आ गई। क्या हुआ है? क्यों चीख रही हो? जल्दी से बिस्तर से उठते हुए मैंने उससे पूछा। वो कमरे में कोई चीज थी, बहुत बड़ी बड़ी और डरावनी। खौफ से कांपते हुए लहजे में फारिया ने कहा, ऐसी क्या चीज देख ली जो तुम इतना डर रही हो? अम्मा ने हैरान होते हुए पूछा और उसे अपने साथ ही बिस्तर पर बिठा लिया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम बचपन से इसी घर में रहती थी, लेकिन कोई भी खौफनाक वाकया रूनुमा ना हुआ था। हैरत की बात है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा वहम होगा या कोई बिल्ली होगी जिसे देखकर तुम डर गई हो, अम्मा ने उसे समझाते हुए कहा। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं और ज़ाहरा फारिया के कपड़े लेकर आई तो उसने वॉशरूम में जाके तब्दील कर लिए। वो अभी तक बहुत घबराई हुई थी। सुबह तक वो नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन उस बात पर बज़िद थी कि उसने कोई खौफनाक चीज देखी थी। ये उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत है। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं आराम से उठकर कमरे में आ गई। जल्दी से मैंने वो मर्दाना चादर देखी जो मुझे ज़ौरान ने मस्जिद में दी थी। वो चादर अपनी जगह पर मौजूद न थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि फारिया सच कह रही थी। यकीनन ये वही जिनजादा था जो मुझे मस्जिद में मिला था और वो अब अपनी चीजें वापस लेने आया था। मुझे जल्दी से यह ख्याल आया तो मैंने उस अंगूठी को देखा। अंगूठी तो अपनी जगह पर ही मौजूद थी। इसका मतलब था कि वो अपनी चीजें वापस लेने आया था और अब दोबारा भी आएगा, क्योंकि उसे अंगूठी नहीं मिली थी। अब मैं उसका इंतजार करने लगी थी।
2 दिन गुजर चुके थे लेकिन वो ना आया था। मैं उससे मिलना चाहती थी। बचपन की पढ़ी हुई जिन्नात के मुतल्लिक कहानियां मुझे बहुत अच्छी तरह याद थीं। दिन को सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे तो मैंने उस अंगूठी को अपने सामने रखा और 3 बार दिल ही दिल में उसका नाम पुकारा। उस वक्त मुझे शदीद हैरत और खुशी हुई कि वो मेरे सामने मौजूद था। तुम कैसे हो? मैंने प्यार भरी नजरों से देखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मेरी अमानत तुम्हारे पास है, वो मेरे हवाले कर दो, उसने बेसब्री से कहा। कौन सी अमानत? तुम किस अमानत की बात कर रहे हो? चादर तो तुम लेकर जा चुके हो। मैंने अनजान बनते हुए पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस अमानत की बात कर रहा हूं। ये बहुत खास अंगूठी है, इसे मेरे हवाले कर दो, उसने मेरे हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी की तरफ देखते हुए कहा। अगर मुझे पहले इल्म होता कि इस अंगूठी के जरिए मैं तुम्हें अपने सामने हाजिर कर सकती हूं तो मैं हर रोज तुम्हें बुला लेती। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मैंने प्यार भरे अंदाज में कहा। तुम मुझे रोज क्यों बुलाना चाहती हो? मासूमाना अंदाज से उसने सवाल किया। मैं तुम्हें क्यों बुलाना चाहती थी, या मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया है, तुम ये जानना चाहते हो? एक खास अदा से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मैं यही जानना चाहता हूं कि तुम मुझे क्यों बुलाना चाहती हो। एक बार फिर उसने अपना सवाल दोहराया। मैं इतनी हसीन हूं कि जो भी मुझे एक बार देखता है दूसरी बार देखने की तमन्ना जरूर करता है। उसके चेहरे पर निगाहें जमाए मैंने मोहब्बत भरे लहजे से कहा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हुस्न परस्त होते हैं। मैं एक बिल्कुल आम सा मुसलमान जिन हूं और कोशिश करता हूं कि दीन इस्लाम के बताए हुए रास्तों पर चल सकूं। उसने निगाहें झुकाकर जवाब दिया। मैं तुम्हें कुछ भी गलत करने का नहीं कह रही, मोहब्बत तो बहुत पाकीज़ा जज्बा है, मैंने संजीदा अंदाज से कहा। इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देता अचानक ही फारिया की आवाज सुनाई दी। वो ज़ारा से कुछ कहती हुई इस कमरे की तरफ आ रही थी। अचानक ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। जल्दी से अंगूठी महफूज मुकाम पर रखते हुए मैं फारिया की तरफ मतवज्जे हुई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे कह देती। अगर किस्मत से आपको आराम करने का मौका मिल गया है तो कुछ दिन आराम कर लें। इस कमरे में 2-3 अलमारियां और चंद चारपाइयां पड़ी हुई थी और घर का सारा फालतू सामान भी इसी कमरे में रखा जाता था। फारिया ने मुझे इस कमरे में देखा तो वो समझी कि मैं शायद कोई काम कर रही हूं। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ अपने ड्रेस देख रही थी। मैंने सोचा था कि अगले महीने कुछ नए ड्रेस बनवा लूंगी, लेकिन अब मुमकिन नहीं है क्योंकि इस हफ्ते काम ना करने की वजह से कपड़े भी नहीं खरीद सकूंगी। मैंने उससे कहा, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। इस महीने ना सही तो अगले महीने आप अपने लिए कोई बेहतरीन ड्रेस ले लीजिएगा। फारिया ने मुझे हौसला देते हुए कहा। अब तो मुझे एक तरीका मिल गया था। जब भी मैं अपने कमरे में अकेली होती तो उसे बुला लेती थी। वो मुझसे अपनी अंगूठी वापस लेना चाहता था। वो एक सच्चा और ईमानदार मुसलमान था। यही वजह थी कि जिन्नात की नस्ल से ताल्लुक रखने के बावजूद वो इंसानों की दुनिया में तबलीग इस्लाम कर रहा था। उसका मकसद दुनिया में अमन व अमान को कायम रखना और मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन करना था। वो जिन्नात की दुनिया में भी ये फराइज सर अंजाम दे रहा था। उसके उस्ताद जो कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम दीन थे, उन्होंने उसकी ड्यूटी इंसानों की दुनिया में एक छोटी सी मस्जिद में लगाई थी। इस गांव के लोग दीन इस्लाम से बहुत दूर और दुनिया की रंगीनियों में खो चुके थे। एक नौजवान इमाम मस्जिद का रूप धार कर ये जिनजादा उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा था। यही वजह थी कि उस नौजवान इमाम मस्जिद की कोशिशों की वजह से गांव के चौधरी साहब ने जब अपने दूसरे बेटे की शादी की तो किसी किस्म का भी शोर गुल ना किया और ना ही नाच गाने की महफिलें सजाई थी। वो बहुत मजबूर था और अपनी अंगूठी वापस लेना चाहता था, लेकिन मैं ये अंगूठी उसे वापस ना करना चाहती थी। अब जब भी मेरे पास आता तो बहुत देर तक मुझसे बातें करता रहता। वो निगाहें झुकाकर बहुत एहतराम से बात करता था और उसकी ये अदा मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो शक्ल सूरत में भी बहुत आला था। कोई भी लड़की उसे देखती तो उसका हाल भी मेरे जैसा ही होता। तुम मुझे अंगूठी वापस कर दो, मुझे बार बार आना अच्छा नहीं लगता, उसने मिन्नत भरे लहजे से कहा। तुम मेरी मजबूरी भी समझने की कोशिश करो,
अगर ये अंगूठी मैंने तुम्हें वापस कर दी तो तुम दोबारा मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे। तुम्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता। आज मैं तुम्हारे सामने इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। उसके सामने निगाहें झुकाकर मैंने एतराफ़ मोहब्बत किया। मैं भी तुम्हें एक बात सच सच बता देना चाहता हूँ कि तुम इतनी हसीन हो कि मेरा जी चाहता है कि हर वक्त तुम्हें देखता रहूं। मैं हर वक्त तुम्हारे सपनों में खोया रहता हूँ, ख्यालों में तुम्हें देखता रहता हूँ। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा तन्हाई में मिलना किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मत बुलाया करो। अगर मोहब्बत करते हो तो मेरे पास आने से क्यों डरते हो? मुझे उसके अल्फाज पर यकीन ना आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना हसीन और गबरू जवान मुझसे भी मोहब्बत कर सकता है। मैं आपके पास आने से नहीं डरता, अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, गलती कर जाता हूँ। इसलिए कोशिश करता हूँ कि ऐसे रास्तों पर ना चलूँ जिस पर बहक जाने का अंदेशा हो। मेरे चेहरे पर निगाह डालकर उसने जवाब दिया और दोबारा निगाहें झुका ली। तुम्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता, इसलिए ये अंगूठी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हाथ में पकड़ी हुई अंगूठी को देखकर मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप आराम से मेरी अंगूठी वापस कर दें, वरना सख्ती करनी पड़ेगी। उसने इंतहाई सर्द लहजे से कहा और गायब हो गया। जब से हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था, आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने इंतहाई सर्द लहजे से बात की थी। बहुत देर तक मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसे भी बात कर सकता है। वो मुझसे सख्ती कर ही नहीं सकता। मुस्कुराते हुए मैंने सोचा, अब मेरा दिल नाच गाने की तरफ बिल्कुल भी मतवज्जे ना होता था। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया था, लेकिन ये जिन्नात तो इंसानों से भी ज्यादा अल्लाह ताला के इबादत गुजार और फर्मा बरदार हैं। मैं जब से जोरान से मिली थी, मुझे अपने आप शर्मिंदगी होने लगी थी। मैडम ने फ़ोन पर तैयार होने का कहा तो मैंने बीमारी का बहाना बनाकर एक हफ्ता मजीद काम करने से इनकार कर दिया। उस दिन के वाक़े के बाद मैडम भी कुछ नरम पड़ चुकी थी, वरना कभी भी मुझे छुट्टी ना देती। मेरा जी उस काम से उचाट हो चुका था। शाम के वक्त हम तीनों अपने कमरे में मौजूद थीं, जबकि अम्मा से मिलने हमसाए की एक खातून आई हुई थी। वो भी हमारी ही बरादरी से ताल्लुक़ रखती थी। हम तीनों उनकी बातें बहुत खामोशी से सुन रही थीं। अचानक ही कमरे में गंदी सी बू आने लगी थी। हम सब हैरान हो रही थी कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन कुछ समझ न आ रही थी। हम सब ने कपड़े की मदद से नाक ढांप लिए थे, लेकिन सांस लेना अब भी मुश्किल हो रहा था। अचानक ही एक और अजीब सा मंजर देखना पड़ा। देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर गया। अब तो सांस लेना इस कदर मुश्किल हो चुका था कि बार बार खांसी लग जाती थी। जल्दी से उठकर कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी ताकि दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। अम्मा और रिश्तेदार खातून तो सांस बंद होने की वजह से गिरकर बेहोश हो गई थी। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। हम भी बेहोश होने के करीब थीं, जब अचानक ही धुएं में मुझे एक अजीब डरावनी सी शक्ल वाला आदमी दिखाई दिया। मुझे ये बात समझने में बिल्कुल भी देर न लगी थी कि ये सब कुछ किया हुआ ज़ौरान का है। एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और साथ ही खिड़की भी मुकम्मल खुल गई। धुआं बहुत तेजी से बाहर जाने लगा। अम्मा और उस खातून को उठाकर कमरे से बाहर लाए और चेहरे पर पानी गिराकर उठाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र था कि थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ गई थी। सब बहुत हैरान थी। अचानक ही एक गंदी सी बदबू और धुआं कहां से आ गया था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन अपनी जबान से कुछ भी न कह सकती थी। इस वाकया के बाद अम्मा बहुत खौफजदा हो चुकी थी। मैं जानते बूझते भी अम्मा को कुछ नहीं बता सकती थी, सिर्फ उन्हें परेशान होते हुए देख सकती थी। अगली रोज आराम करने के बहाने कमरे में आकर लेटी और उसे बुला लिया। वो आज बहुत गुस्से में और खामोश था, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया था। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है। मैंने नाउम्मीद निगाहों से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? वो अंगूठी तुम मेरे हवाले कर दो, वो मेरी अमानत है। एक बार फिर उसने अजनबी से लहजे में कहा। उसका लहजा मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। वो हमेशा बहुत अच्छे अंदाज से बात करता था।
میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتی ہوں اور ہمیشہ یہی کہوں گی کہ اگر تمہیں انگوٹھی واپس کر دوں تو پھر تم سے دوبارہ کیسے مل سکوں گی؟ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، تم آدم زادی ہو اور میں جن زاد ہوں۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں؟ اس نے بہت تیز لہجے سے پوچھا۔ اس کے لہجے سے غصے کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ تم جتنا ڈانٹنا چاہتے ہو ڈانٹ لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دینا چاہتے ہو تو وہ بھی دے دو۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے ہٹ دھرمی سے کہا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گی اور میری انگوٹھی واپس نہیں کرو گی تو مجبوراً مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ اب کی بار اس کا انداز بدل چکا تھا۔ میرے رونے کا اس پر اثر ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کی سختی ختم کر دی تھی۔ تم مجھ سے کیوں جان چھڑانا چاہتے ہو؟ میں نے روحان سی لہجے سے پوچھا۔ نہ جانے تمہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے، میں تم سے بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں اور تم الگ مخلوق ہیں، لیکن تمہیں میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہیں تو پھر نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دھمکی دیتے ہوئے وہ غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی بے رخی سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اچانک سے وہ کیوں اتنا بدل گیا ہے؟ روتے ہوئے میں نے سوچا، اب کی بار وہ آئے گا تو اس سے دو ٹوک بات کروں گی۔ وہ کیوں میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا؟ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دن کا کھانا تیار ہو جانے پر اماں نے مجھے جگا دیا۔ میرا دل بہت اداس تھا، کچھ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن سب کے ساتھ کھانا پڑ رہا تھا۔ چند لقمے بہت مشکل سے حلق سے اتارے تھے۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ میری پریشان شکل دیکھ کر اماں نے پوچھا۔ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بخار ہونے والا ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بیماری کا سن کر اماں پریشان ہو گئی تھیں، لیکن میں نے انہیں تسلی دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی روز اماں کی اپائنٹمنٹ تھی۔ ڈاکٹر سے ہر مہینے چیک اپ کروانا لازمی تھا۔ میں اکیلی رہنا چاہتی تھی، اس لیے فاریہ اور زارا دونوں کو اماں کے ساتھ بھیج دیا اور خود گھر پر ہی رہ گئی۔ انہیں گئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ زوران آ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ خود آیا تھا، ورنہ میں خود اسے انگوٹھی کی مدد سے بلاتی تھی۔ اسے اچانک ہی اپنے سامنے دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آج تم خود ہی کیسے آ گئے ہو؟ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا چاہتا تھا، اس لیے خود ہی آ گیا۔ اس نے جواب دیا۔ مجھ سے ضروری بات کرنی تھی؟ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، تم سے۔ اس نے سنجیدہ انداز میں مختصر جواب دیا۔ کیا ضروری بات ہے؟ جلدی سے بتا دو، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ میں نے چہکتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ ہم دونوں مسلمان ہیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار سکتے۔ میری طرف دیکھ کر اس نے بات شروع کی۔ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی، میں چاہتا تو تم سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن میں خالق کائنات سے ڈرتا ہوں۔ ہم دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، تم مٹی سے بنی ہو اور میں آگ سے، اس لیے ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسان اور جنات کے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے، پھر ہم دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ میرے ارمان اس کی الفاظ کی تپش میں جھلس رہے تھے۔ ایک اور بات یہ بھی بتانی تھی کہ میں پہلے سے نہ صرف شادی شدہ ہوں بلکہ 16 بچوں کا باپ بھی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ تم مجھ سے جان چھڑانے اور انگوٹھی واپس لینے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہو؟ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ زرینہ سامنے آؤ، اس نے مسکراتے ہوئے دیوار کی طرف دیکھ کر کہا تو ایک خوبصورت حسینہ سامنے نمودار ہوئی۔ میں زوران کی چوتھی بیوی ہوں۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ اس لڑکی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیا؟
चौथी बीवी। ये सुनकर तो मेरा सर ही चकरा गया था। हम इंसान नहीं जिन्नात हैं, और जिन्नात कसीर तादाद में शादियां करते हैं। अगर तुम कहो तो बाकी तीनों बीवियों से भी तुम्हें मिलवा दूं। उसने तंज़ी अंदाज से पूछा। अब तुम मेरे शौहर की अंगूठी वापस कर दो। ये अंगूठी जिन्नात की बहुत अहम अंगूठी होती है। हमारा शौहर शरीफ जिनज़ादा था। अगर कोई और होता तो अब तक तुम्हें जान से मारकर भी अंगूठी वापस ले लेता। उसकी बीवी ने गुस्सीले लहजे से कहा, मैं तुमसे शादी करने के बाद इस बदनाम मोहल्ले से अपने खानदान समेत दूर जाना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यहीं रहना लिखा है। अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा, यह एक तरफा मोहब्बत से सिर्फ दुख और अजियत मिलती है। ये मैं अच्छी तरह जान चुकी थी। ये बैग मेरी तरफ से तोहफा है। इसमें मौजूद रकम से तुम अपनी जिंदगी बदल सकती हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो जो चादर मैंने तुम्हें दी थी उसे ओढ़ लेना और मुझे पुकारना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो चादर वहां ही रखी है जहां तुमने रखी थी। अचानक से एक बैग उसके हाथ में आ गया था। जमीन पर बैग रखकर उसने कहा, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हुए थे, इसलिए मैं मुआफी चाहती हूं। अपने आंसू छुपाते हुए मैंने कहा, अब तुम्हारे पास पैसा है, किसी नौजवान से शादी करके अपना घर बसा लेना। मुझ जैसे किसी बूढ़े का इंतखाब ना करना। जोरान ने मशवरा दिया। तुम बूढ़े हो? मैंने हैरान होते हुए पूछा। 180 साल के इंसान की हड्डियां भी गल सड़ के खत्म हो चुकी होती हैं, और मेरी उम्र 180 साल है। उसने एक और इंकिशाफ किया। मजाक कर रहे हो? मैंने बेयकीनी से पूछा। क्या तुम नहीं जानती कि जिन्नात बहुत तवील उम्र पाते हैं? जिन्नात की उम्रों के हिसाब से तो ये अभी जवान है, लेकिन इनके मुकाबले में इस उम्र के इंसान का मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को एक दूसरे से मुख्तलिफ पैदा किया है। उसकी बीवी ने चुभते हुए अंदाज से कहा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो दोनों गायब हो गए। बहुत देर तक मैं अपनी मोहब्बत की बर्बादी पर आंसू बहाती रही। मैंने अपने लिए नहीं, अपनी माँ और बहनों के लिए जिंदा रहना था, इसलिए खामोशी से पैसों वाला बैग संभाला और सजदा शुक्र अदा करने के लिए वुजू किया। एक नई जिंदगी हमारे इस्तकबाल के लिए बाहें खोली खड़ी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।